students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, आप कंप्यूटर के बारे में जान चुके हो. अब हम जानते हैं कंप्यूटर कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाता है और उसको फॉलो करता है. So let's start our new chapter, which is problem solving. Things to learn: algorithm, flow chart, solving problems using algorithms and flow charts. Adi Robo, today my teacher says that a computer follows some algorithms and flowcharts to solve a problem. What are algorithms and flowcharts? Can you tell me something about them? Robo, sure Adya. When we have to solve any problem, we use stepwise processes to reach the solution. Flowcharts and algorithms are similar steps. Let us start by learning about the algorithm flowed by सॉल्विंग अ सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम आर लाइफ यूजिंग एल्गोरिथम. तो जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जैसे आपको मैथ्स में सम सॉल्व करने होते हैं, तो आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हो, फिर आप नतीजे पे पहुंचते हो. तो इसी तरीके से जो एल्गोरिथम है और जो फ्लो चार्ट है वो काम करता है. In our daily life, we have to solve various problems by using different strategies. These strategies are called problem-solving techniques. A problem-solving technique is a collection of sequential steps to solve a problem. In the same way, programmers also use different types of techniques to solve the problems related to programming. Some of these techniques are algorithms and flowcharts. In this chapter, we will learn about algorithms and flowchart used to develop programs. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए algorithms and flowcharts का इस्तेमाल होता है. पहले हम बात कर लेते हैं एल्गोरिथम की. An algorithm is a set of steps in a sequential manner to solve a problem or to complete a task. The problem can be logical or mathematical. Algorithms are the building blocks of computer programs. They are important to programming as recipes are for cooking. तो जैसे आप कुकिंग के लिए रेसिपी का इस्तेमाल करते हो, रेसिपी में क्या होता है, रेसिपी में आपको पता चलता है कि क्या चीज़ कब डालनी है. जैसे आपके प्रोसेस होते हैं कि आप पहले तेल डालते हो, फिर आप उसमें मसाले डालते हो, प्याज डालते हो, अनियन डालते हो. तो इसी तरीके से आपका एल्गोरिथम वर्क करता है. An algorithm is always written in very simple words and precise language so that the steps can be understood easily by everyone. तो इसमें जो आपके स्टेप्स होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइसली मेंशन होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हर एक चीज़ को. In computer terms, algorithm is the sequence of steps or computer operations which collectively solve a given problem. इसी तरीके से कंप्यूटर टर्म की अगर हम बात करें तो algorithm जो है ये आपका sequence of steps होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. Now characteristics of a good algorithm. For some instructions to be an algorithm, it must have the following characteristics as given on next page. पहला होता है आपका क्लियर एंड unambiguous. The algorithm should be unambiguous. Each of its steps should be clear in all aspects and must lead only one meaning. तो आपके जो steps हैं वो clear होने चाहिए और वो हर कोई समझ सके, ऐसे आपको steps जो है वो बनाने होते हैं. Second is well-defined inputs. If an algorithm says to take inputs, it should be well-defined inputs. It may or may not take input. तो आप जो इनपुट इसमें डालते हैं वो भी वेल डिफाइंड होने चाहिए. थर्ड वन इज वेल डिफाइंड आउटपुट्स. द एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी yielded and it should be well defined as well. It should produce at least one output. तो आपका एल्गोरिथम में आपने इनपुट डाला तो उसका आउटपुट भी आपके पास क्लियर आना चाहिए. फोर्थ इज finiteness. The algorithm must be finite, i.e. it should terminate after a finite टाइम. तो इसका एक फिनिट टाइम होना चाहिए, फिनिट टाइम पे ही टर्मिनेट होना चाहिए. Feasible. The algorithm must be simple, generic and practical such that it can be executed with the available resources. It must not contain some future technology or anything. तो जो आपका पॉइंट है उन्हीं पॉइंट के बेसिस पे होना चाहिए, आपको इधर उधर की बातें उसमें इंक्लूड नहीं करनी. Sixth is a language independent. The algorithm designed must be language independent, i.e. it must be just plain instructions that can be implemented in any language and yet the output will be the same as expected. तो इसकी जो लैंग्वेज है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ठीक है.
Seventh input, an algorithm has 0 or more inputs each that contains a fundamental operators must accept 0 or more inputs. तो input इसका आपका पता ही है कि 0 या फिर more inputs के साथ होता है और हर एक जो है वो कोई ना कोई fundamental operator को contain करता है. Output, an algorithm produce at least one output. Every instruction that contains a fundamental operator must accept 0 or more output. तो इसका आउटपुट जो है वो भी आपको पता है कि एटलीस्ट वन आउटपुट इसका होना चाहिए. नीड फॉर एलॉगरिथम्स, एलॉगरिथम की नीड क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, यहाँ पे हमें बताया गया है एलॉगरिथम्स आर नेसेसरी फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. दे हेल्प टू ऑटोमेट प्रोसेसेस एंड मेक देम मोर रिलायबल, फास्टर एंड ईजियर टू परफॉर्म. Algorithms also enable computers to perform tasks that would be difficult or impossible for humans to do manually. They are used in various fields such as mathematics, computer science, engineering, finance, and many other to optimize processes, analyze data, make predictions, and provide solutions to problems. Let us understand an algorithm by an example. तो यहाँ पे इसके फीचर्स बताए गए हैं कि क्यों ज़रूरत होती है हमें एलॉगरिथम की. एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है, काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है. ठीक है, ये इसके जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं, फास्टर होते हैं और इनको ईजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं. एलॉगरिथम जो है ये आपका कंप्यूटर को अनेबल करता है ताकि वो किसी भी डिफ़िकल्टी को ईजीली क्या कर सके, सॉल्व कर सके. अब यहाँ पे हमें स्टेप के थ्रू समझाया गया है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. व्हाट स्टेप्स वुड यू फॉलो टू गो टू स्कूल? द पॉसिबल स्टेप्स आर एज फॉलोज. स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 वेक अप. स्टेप 3 हैव अ बाथ एंड गेट रेडी. स्टेप 4 हैव योर ब्रेकफास्ट. स्टेप 5 गो टू स्कूल bus, stop and wait for the bus. Step 6 when the bus comes, board it. Step 7 reach school. Finally you get the desired result, i.e. you reach school. तो यहाँ पे स्कूल जाने के लिए आपको स्टेप्स बताए गए हैं. ठीक है, तो आप स्टेप फॉलो करते हो, आप पहले ही स्कूल नहीं पहुँच जाते. आप सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, अपना ब्रेकफास्ट करते हो, आप रेडी होते हो, फिर आप कहाँ जाते हो, बस पकड़ने जाते हो, अपनी स्कूल की बस, और फिर आप अपने स्कूल पहुँचते हो. तो ये क्या होता है, सीक्वेंस में होता है. More examples of algorithm. Example 1, algorithm to find the average of 3 numbers. Step 1 start. Step 2 enter 3 numbers ABC. Step 3 find average. Average is equal to A plus B plus C oblique 3. Step 4 print average. Step 5 stop. तो आपको यहाँ पे 3 नंबर का एवरेज निकालना है. तो आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप 3 नंबर लिखेंगे, फिर आप फाइंड एवरेज लिखेंगे और आप अपने एवरेज को जब निकल जाएगा उसको प्रिंट करेंगे और आपका एलॉगरिथम स्टॉप हो जाएगा रिजल्ट निकलने के बाद. एग्जाम्पल 2, एलॉगरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 एंटर लेंथ विड्थ LW. स्टेप 3 फाइंड एरिया. एरिया इज इक्वल टू L इंटू W. स्टेप 4 प्रिंट एरिया. स्टेप 5 स्टॉप. अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल जो होता है उसका आपको एरिया निकालना है. तो आप क्या करेंगे, एंटर लिखेंगे, उसकी लेंथ एंटर करेंगे, देन आप उसकी विड्थ एंटर करेंगे, फिर पूरा एरिया आपको निकालना है. तो आप क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो आपका एरिया निकल जाएगा और आपका एलॉगरिथम स्टॉप हो जाएगा. Now flow chart. Flow charts are nothing but the graphical representation of the data or the algorithm for a better understanding of the code usually. It displays step-by-step solutions to a problem, algorithm or process. A flowchart is a type of diagram that represents a workflow or process. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm, a step-by-step approach to solving a task. A flowchart is drawn after writing an algorithm. अब जब आप एलॉगरिथम लिखते हो तो उसके बाद आप क्या बनाते हो, उसी के बेसिस पे आप फ्लो चार्ट बनाते हो. तो फ्लो चार्ट भी क्या है, सेम ही चीज़ है, लेकिन आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाते हो, स्टेप वाइज स्टेप. Flowchart symbols. Different types of boxes are used to make flowchart symbols. All the different kinds of boxes are connected by arrow lines. Arrow lines are used to display the flow of control. Let's learn about each box in detail. तो फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम कुछ बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं और इन बॉक्सेस को हम जोड़ते हैं एरो लाइन से.
सबसे पहले जानते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स के बारे में। दिस बॉक्स इज ऑफ एन ओवल शेप विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोग्राम। Every flowchart diagram has an oval shape that depicts the start of an algorithm and another oval shape that depicts the end of an algorithm. तो यहाँ पे आपको ओवल बता रखा है। ओवल से क्या होता है? ओवल से आपका एलॉग्रिथम जो है वो स्टार्ट होता है और उसी से ये एंड भी होता है। तो जब भी आप फ्लो चार्ट बनाते हो, स्टार्ट और एंड करने के लिए आप ओवल शेप को लोगे। Input output box, this is a parallelogram shaped box inside which the inputs or outputs are written. This basically depicts the information that is entering the algorithm and the information that is leaving the algorithm. For example, if the user wants to input A from the user and display it, the flowchart of this would be start, input A, print A, and. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस तरह का जो आपका डायग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम शेप का होता है बॉक्स, ये आपके इनपुट या आउटपुट डालने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताया है, आपका ओवल से स्टार्ट शुरू हुआ, उसके बाद आपने ये देखा ये इनपुट ए और जो प्रिंट ए है ये आपका इनपुट आउटपुट है, और फिर एंड जो है वो ओवल शेप से ही हुआ है। Now processing box. This is a rectangular box inside which a programmer writes the main course of action of the algorithm. This is the crux of the flowcharts as the main processing code is written inside this box. तो जो भी प्रोग्रामर प्रोसेस करता है अपने प्रोग्राम में वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखता है। तो ये आपका मेन प्रोसेसिंग कोड होता है जिसमें आपके प्रोग्रामर्स अपने जो स्टेप बाय स्टेप जो भी इनके एल्गोरिथम होते हैं वो ये मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन। दिस इज अ रोम्बस शेप्ड बॉक्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ कंडीशन लाइक A is greater than 0 etc. are written inside the box. There are two paths from this, one which is yes and the other one is no. Every decision has either yes or no as an option. Similarly, this box has these as options. For example, if the user wants to add 1 to an even number and subtract 1 if the number is odd, the flow chart would be start input A. If A percentage 2 is equal to 0, अगर yes हुआ तो आप लिखेंगे A is equal to A plus 1, अगर no हुआ तो हम लिखेंगे A is equal to A minus 1। फिर आप इसका आंसर प्रिंट करेंगे, प्रिंट A और इसे एंड करेंगे एंड लिखकर। तो आपके जो डिसीजन होते हैं, जैसे कि आपका येस और नो में ज़्यादातर डिसीजन आता है, कभी कभी आपका आंसर जो होता है वो क्या होता है, या तो येस में होता है या तो फिर नो में होता है या फिर दोनों में होता है। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए आप यहाँ पे इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। Flow lines, these arrow lines represent the flow of algorithm. It represents the direction of the process flow. Arrow increases the readability of the program. तो ये आपके जो arrow lines होती हैं ये आपके फ्लो को, कि फ्लो किस तरफ जा रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करती है, और साथ ही साथ ये जो बॉक्सेस हैं आपके अलग अलग शेप्स हैं उनको भी ये क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। Connectors, this circular figure is used to depict that the flow chart is in continuation with the further steps. This figure comes into use when the space is less and the flowchart is long. Any numerical symbol is present inside this circle and that same numerical symbol will be depicted before the continuation to make the user understand the continuation. Below is a simple example of depicting the use of connector. Start input A. If A percentage 2 is equal to 0, yes A is equal to A plus 1, no A is equal to A minus 1 is equal to, आपका आंसर आया है क्रॉस। अब क्रॉस के आगे ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में दिखाया है प्रिंट ए प्रिंट एंड। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे जो फ्लो चार्ट होता है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन को दिखाने के लिए इस तरह का कनेक्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एक पेज में नहीं आ रहा फ्लो चार्ट, आप उसको दूसरे पेज पे जाते हो, तो जैसे हम लिखने में PTO दर्शाते हैं वैसे आप कनेक्टर के रूप में इसको दर्शाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे जो एडिशन वगैरह होते हैं या जो भी हमारे कैलकुलेशंस होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। Critical thinking, if there is a no arrowheads on flow lines, what will be its disadvantages? Give an example of an instruction to write in the processing box. तो इनके आंसर आपको अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करके देने हैं। Now, advantages of flowchart. It is the most efficient way of communicating the logic of the system.
It acts as a guide for a blueprint during the program design. It also helps in the debugging process. Using flowcharts, we can easily analyze the programs. Flowcharts are good for documentation. तो यहाँ पे आपको इसके एडवांटेजेस बताए गए हैं कि काफ़ी एफिशिएंट वे होता है अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने का, ठीक है। ये गाइड की तरह वर्क करता है फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिज़ाइन। साथ ही साथ ये डीबगिंग प्रोसेस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस ऑफ flowchart. Flowcharts are challenging to draw for large and complex programs. It does not contain the proper numbers of details. Flowcharts are very difficult to reproduce. Flowcharts are very difficult to modify. तो अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे फ्लो चार्ट जो है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ड्रॉ करने में, ठीक है। इसमें आपके प्रॉपर नंबर ऑफ डिटेल्स नहीं होते और साथ ही साथ आपके फ्लो चार्ट जो होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं रिप्रोड्यूस करने में और उनको मॉडिफाई भी करना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट फॉर बाइंग स्टेशनरी फ्रॉम द मार्केट। स्टार्ट, गो टू द स्टेशनरी शॉप, आस्क फॉर द रिक्वायर्ड स्टेशनरी, गो टू द कैश काउंटर, पे मनी टू द कैशियर एंड स्टॉप। Now you should know the general direction of a flow in any flow chart is from top to bottom or from left to right. तो ये आपका जनरल डायरेक्शन यहाँ पे बताया गया कि कोई भी जो फ्लो चार्ट है वो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक स्टार्ट होता है या फिर ये लेफ्ट से लेकर राइट तक स्टार्ट होता है। सिंप्लीफाइड लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट हेल्प इन प्लानिंग। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। Now more examples of flowchart. Example 1, flowcharts to calculate some difference and product of two numbers. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे आप किसी भी नंबर्स के बीच में सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हो। तो स्टार्ट किया आपने, इनपुट आपने टू नंबर ए एंड बी लिखा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम, डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी, प्रिंट डिफरेंस, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी, प्रिंट प्रोडक्ट एंड स्टॉप। Example 2, draw a flow chart to show you are eligible for voting. Start, enter your age. Is age greater than 18? Yes. Can vote. No, cannot vote. Stop. तो आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है ये बताने के लिए कि क्या आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। तो आपको पता है कि 18 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं वो ही वोटिंग कर सकते हैं। Solving problems using algorithms and flowcharts. Example 1, algorithm and flowchart to find the greatest number among the two numbers. अब आपको यहाँ पे algorithm and flowchart बनाना है ये जानने के लिए कि दो नंबर में से greater number कौन सा है। algorithm हम सबसे पहले लिखेंगे step 1, start, step 2, input two numbers from user, step 3, now check the condition, if A is greater than B, go to step 4, else go to step 5. Step 4, print A is greater, go to step 6, step 5, print B is greater, step 6, stop। ठीक है, ये आपने एल्गोरिथम लिखा। अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट आप कैसे बनाएंगे, स्टार्ट लिखेंगे, इनपुट A एंड B, ठीक है। A इज ग्रेटर देन B, अगर यस आएगा तो आप एरो लाइन बना करके प्रिंट A इज ग्रेटर लिखेंगे और उसको स्टॉप कर देंगे। अगर नो आया है तो आप लिखेंगे प्रिंट B इज ग्रेटर और तब भी आप स्टॉप कर देंगे। Example 2, algorithm and flowchart to find area and perimeter of rectangle. अब आपको क्या करना है, algorithm और flowchart बनाना है ये जानने के लिए कि rectangle का area और perimeter क्या होता है। algorithm आपने लिखा, step 1 start, step 2 input side length and breadth से L B, area आप लिखेंगे L into B, step 4 perimeter is equal to 2 into L plus B, step 5 print area perimeter, step 6 stop। अब इसी का आपने फ्लो चार्ट बना लिया। यहाँ पे स्टार्ट किया आपने अपना फ्लो चार्ट को, देन आपने इनपुट लिखा एल बी, देन आपने एरिया लिखा इज इक्वल टू एल इंटू बी, आपने पेरीमीटर लिखा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का, प्रिंट एरिया पेरीमीटर एंड आप कर देंगे स्टॉप। नाउ एग्जाम्पल 3, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। algorithm, step 1 start, step 2 now initialize C is equal to 1, step 3 now we check the condition, if C is less than 11 then go to step 4, otherwise go to step 6, step 4 print C, step 5 C is equal to C plus 1 then go to step 3,
स्टेप 6 स्टॉप। अब इसी का आपने फ्लो चार्ट बनाना है। आप लिखेंगे सबसे पहले स्टार्ट, देन c इज इक्वल टू 1। अब इसका आंसर है इज c इज लेस देन 11। अगर यस आएगा तो आप प्रिंट c लिखेंगे, c इज इक्वल टू c+1। अगर नो आएगा तो आप नो लिख करके स्टॉप पे से एंड कर देंगे। Now think and share as flowcharts and algorithms help us in writing programs. Similarly, mind maps are useful in learning and remembering. Drawing a mind map involves drawing a diagram around one main topic using drawings, colors, and short word phrases. Explore and discuss what are mind maps and how can they be used in remembering concept. अब जैसे आपको पता है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम जो होते हैं ये आपके प्रोग्राम को राइट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आपने माइंड मैप्स के बारे में सुना होगा जो आपको लर्निंग और याद रखने में क्या करते हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, माइंड मैप्स को ड्रॉ करना है जिसमें आपकी ड्राइंग इन्वॉल्व होगी और इसमें आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेंगे जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, ड्राइंग वगैरह बनाएंगे और कुछ शॉर्ट वर्ड फ्रेजेस को भी इसमें डालेंगे। Example 4, algorithm and flowchart to print the first 5 multiple of 3. Algorithm step 1 start, step 2 now initialize c is equal to 1, step 3 now check the condition, if c is less than 6 then go to step 4, otherwise go to step 6. Step 4 print 3 into c, step 5 c is equal to c+1, then go to step 3, step 6 stop. Flowchart start c is equal to 1 as c is less than 6. Yes, print 3 into c, c is equal to c+1. If no, then stop. तो इस तरीके से आप यहाँ पर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाएंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने के लिए 3 के। तो पहले आपने एल्गोरिथम लिखा, फिर आपने इसी का क्या बनाया, फ्लो चार्ट बनाया। ट्रिकी टर्म्स, एल्गोरिथम अ टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ा कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, जो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाते हो, स्टेप्स वगैरह लिखते हो कि इस प्रॉब्लम को मुझे इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। और फ्लो चार्ट क्या होते हैं, ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप उसका पिक्टोरियल फॉर्म, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.